ऐसे बेकार में तो नहीं फैल रहा है ना, मतलब अच्छा है। So tell me one thing, we'll be waiting over here. हाय, आज मैं एक होस्ट की हैसियत से नहीं, एक फैन की हैसियत से आपसे बात करूंगी. Well, welcome everybody. My name is Rohini, and on behalf of Amazon Prime Video, I'd like to welcome you all to this eagerly awaited occasion, the trailer launch of the much-loved Amazon original series Mirzapur 2. अब बहुत बतिया लिया अंग्रेजी में, अब आते हैं औकात. मैं आपको एक बात बताऊं, ये शो जो है, ये शो नहीं है, ये एक जिंदगी है. ये एक ऐसी मतलब दुनिया है जिसके अंदर आप एक बार घुस गए तो भाई निकलना बहुत मुश्किल है. और पिछले 3-4 हफ्तों से सिर्फ एक चीज, एक्चुअली लॉकडाउन शुरू हुआ और कुछ 1-2 महीने बाद से एक गूंज जो थी वो उठी, और वो गूंज थी एक हैशटैग, एंड दैट वाज MS2W, which is मिर्जापुर सीजन 2 when. जाहिर सी बात है आपका इंतजार जो है अब आकर खत्म होगा, क्योंकि आने वाले तारीख में यानी कि अक्टूबर 23 को इन मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे मिर्जापुर सीजन 2. लेकिन जाहिर सी बात है आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं, तो एक ट्रेलर, एक झलकी तो दिखानी बनती है. लेकिन उससे पहले we would love to welcome the gripping Amazon originals in India, the powerhouse behind that. Welcome Aparna Purohit, head of India Originals, Amazon Prime Video. Hi Aparna. Hi. Good afternoon, everyone. Mirzapur में आपका स्वागत है. The wait for season 2 of Amazon original series Mirzapur has been long, full of anticipation and excitement. लेकिन बिरयानी को पकने में वक्त तो लगता है ना. So here we are today on this momentous occasion to unveil the trailer of the gritty and riveting crime drama. The unmatched fandom of the show speaks volumes about the appreciation and love that the show has received thus far. It's very rare that a show becomes a part of popular culture in this massive a way. If I were to say in Mirzapur lingo, bhokal. So this trailer launch is a tribute to every fan of Mirzapur. I must express my deepest gratitude to the creators, writers, actors, and all the technicians of the show who've built this mesmerizing universe for us. We've always treasured our collaboration with Excel Media and Entertainment, and we are super excited to bring the season 2 of Mirzapur for all of you. Thank you everyone for joining us today as we embrace another iconic milestone. Thank you, Aparna. Sorry, I'm just going to be a fangirl through and through. Up next, of course, I'd like to welcome the powerhouse producer that brought to us Mirzapur, as well as many other gripping Amazon original series, including, of course, Inside Edge and The Amazing Made in Heaven, Ritesh Sidwani, producer, Excel Entertainment. Can you hear me? Because it's showing mute here. We can hear you. Okay, great. How's everybody doing? Everyone's ready to eat biryani, as Aparna rightly said. Yeah. Yeah, so I mean, it is like Aparna, I think, has summed it up really well. We are very, very excited with it. The wait has been even for us because it was a little bit long.
कुछ ज्यादा ही समय लग गया, बट आई थिंक अगेन ड्यू टू कोविड थोड़ा और गैप हो गया, वरना इट वुड हैव बीन few months earlier. But now it's all done, and we're all ready to dive into it. I'm just waiting because now that that eagerness to see what the reaction is, and hopefully, which we are pretty sure that जो ये hunger था बिरयानी खाने का, it'll be well met with this. So yeah, just looking forward to everyone's feedback after this. बहुत बढ़िया रितेश, मैं आपको बता दूं कि ये शो आपका जरूर शुरू हुआ होगा, लेकिन ये अब हिंदुस्तान का शो हो चुका है। तो बस इसी के साथ मैं कहूंगी कि चलिए आप और मैं उतरते हैं एक और बार मिर्जापुर की दुनिया में। लेट्स वॉच द ट्रेलर। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए हैं, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। साले बिहार में आपका स्वागत है। दद्दा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते 1 मिनट में तुम्हारी ले लेते। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। स्वीटी बबलू का उधार है हम पे, चुकाना है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। भौकाल मच चुका है भैया। सच रॉ कैरेक्टर्स, फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस। और इस बार ये प्लॉट क्या होगा इस लॉलेस लैंड में, आई कैन नॉट वेट टू फाइंड आउट। तो चलिए अब परिवार से मिलते हैं, परिवार वालों से एक और बार इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप लोगों का। सबसे पहले द क्रिएटर ऑफ दिस मास्टरपीस मिस्टर पुनीत कृष्णा, और इनके साथ डायरेक्टर्स हैं गुरमीत सिंह एंड मिहिर देसाई। हाय गाइस। हेलो हेलो। हाय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए, सलाम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारी तरफ से चलिए थोड़ी सी इज्जत दिखाइए, क्योंकि आने वाले हैं आपके स्क्रीन के सामने द वन एंड ओनली कालीन भैया, यानी कि पंकज त्रिपाठी साहब। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। द पावर हंग्री गुड्डू भैया, यानी कि अली फजल। मुन्ना भैया, यानी कि दिव्येंदु शर्मा। गजरानी या फिर गोलू जी, यानी कि हमारी त्रिपाठी शर्मा। जिम्पी पंडित, यानी कि हर्षिता गौड़। और हमारी भाभी बीना भाभी, रसिका दुग्गल। हाय गाइस। हेलो। ओह माय गॉड, आंखों में आंसू आ गए इस पर। हमारे भी बड़ा इमोशनल मोमेंट रहा है आपके साथ। बस थोड़ी देर में वापस लौटेंगे,
क्योंकि देखिए इस परिवार में इतने और भी मेंबर्स हैं, इनको भी लाएंगे स्क्रीन पर इनके बाद। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं माँ और बाबूजी के साथ, राजेश तेलांग साहब और इनके साथ शीबा चड्डा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। स्वागत नहीं करेंगे एसपी साहेब का, यानी कि अमित सियाल को। इनके साथ है अंजुम शर्मा, जिनका एक नया रूप जो है देखने मिलेगा सीजन 2 में। लेकिन इनके साथ we've been waiting to know कि भैया जो नए चेहरे हैं वो कौन से जुड़ने वाले हैं इस सीजन में। एंड I'd like to welcome जो पीछे खुद ही कालीन लेकर आए हैं, विजय वर्मा, ईशा तलवार एंड प्रियांशु बैनुली। क्या बात है, किसी को लीव आउट तो नहीं किया ना भैया? सबके नाम ले लिया हमने। तो ठीक है, एक काम करते, सबसे पहले ना हम एक फोटो लेते हैं, फैमिली फोटो, क्योंकि इस फैमिली की खास बात ये है कि देखिए एक एपिसोड में शायद पूरी फैमिली दिखे एक साथ, अगले एपिसोड में शायद 2 मेंबर कम हो जाए। तो इससे पहले कि कुछ शुरू हो जाए, हम पूरी फैमिली के साथ एक फोटो ले लेते हैं। 5 या 10 सेकंड के लिए हमें एकदम स्टिल रहना होगा। एंड 3, 2, 1 अबे फोटो ले बे। मेरा शायद फ्रीज पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब बातचीत की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपर्णा से बात करना चाहूंगी। हाय अपर्णा। हेलो अगेन। Aparna, you know, when you introduced the season, आपने कहा कि you know there is a fandom जो काफी चीजें डिक्टेट करता है। मुझे बताइए how important is this fandom, खास करके जब इतना पॉपुलर एक शो हो जाए? Mane, you know, at Amazon, every selection that we make is customer backwards, and audiences are at the front and center of all the decisions that we make. But when we had embarked on the journey of Mirzapur, we knew that we were on to something very exciting. Every script that we read, every edit that we watched, we knew that this show is going to connect. That we are building something that will span over multiple seasons. And of course, when you have crazy fandom like this show has, it only reaffirms that we had indeed made the right decision for our audiences. Fantastic. Thank you so much. As a fangirl, once again, I'll say thank you for giving us season 2. And Aparna, we'll be back with you in just a little bit. Can I please have Ritesh with me up next? Hi, Ritesh. Hello. Ritesh, you got to talk about this sort of magical combination, between you guys and Amazon Prime Video. What's that secret? You guys like partners in crime, partners in dime? What's going on? I think it's partners in sensibility. Correct. I think the kind of stories we want to tell, and if you have a perfect partner who has the reach to take your stories to almost 200 countries. So I think the collaboration, because the kind of stuff we do, it can't be about the dime, it can't be about anything else besides just believing in the same voice. So if you want to support that voice, you want to say a particular story. And I think we found that with Amazon, we have not one, we have multiple shows with them. Each show is now in its 2nd or 3rd seasons. So I think that itself tells you the relationship, what we share with them. And I think it's become very comfortable now, we have to just call up Aparna and say, Aparna, we have one more story, and she'll say, just send it over. So it's as easy as that. So I'm making sure after this call also, I'm sending her a script and she has to approve it, because now she's agreed to this. She's yours, man. She's yours. This is pretty great. And also, thank you so much, because giving us indigenous and original Indian content, that's what the attempt is. And I think you guys are doing such a fab job. And as an audience, I just want to say a big thank you for giving us these stories. Yeah? Oh, thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back in just a little bit. Ab Puneet ji se baat kiya jaye. Puneet ji, namaskar. नमस्कार। पुनीत जी, मुझे बताइए, ये बहुत ही लेमैन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती जनता जनार्दन होती है, तो प्लीज जरा जवाब तो दे दीजिएगा कि सीजन 2 में क्या होने वाला है, सब बता दीजिए, एवरीथिंग। मन तो मेरा है कि सब बता दूं, लेकिन फिर 23 तारीख को क्या देखेंगे। लेकिन कुछ तो होगा ना कि नए एलिमेंट्स आपके हिसाब से इस सीजन में ऑडियंस को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट शायद इस बात की भी कि अब स्टोरी कहाँ जाएगी, अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन आपके हिसाब से जो एक्साइटिंग एलिमेंट्स हैं, आप किन की तरफ हमारा ध्यान जो है देना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि इस बार सीजन 2 में कैनवस बड़ा है। हम मिर्जापुर के अलावा और शहरों में भी गए हैं, जो जब देखने वाले हमारे प्यारे फैंस उसको देखेंगे तो रियलाइज करेंगे। और जो एक्टर्स हमारे पास सीजन 1 से सीजन 2 में आ रहे थे वो तो हैं ही, इसके अलावा सीजन 2 में कुछ नए और बेहतरीन एक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया, उनको देखने में बहुत मजा आने वाला है। ह्यूमन ड्रामा बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि जो भी प्यार हमें सीजन 1 पे मिला था सारे फैंस से, वो सीजन 2 पे और ज्यादा मिलेगा। और जो खुशी हमने सीजन 1 पे बनाते समय सबको दी थी, वो हमें उम्मीद है कि सीजन 2 पे और ज्यादा हम दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे बहुत शुक्रिया एंड फॉर सीजन 2 वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब हम गुरमीत जी से बात करना चाहेंगे। गुरमीत जी नमस्कार। नमस्कार दादा, आपको तो पता है कि कितनी फैंडम है शो को लेकर, यू नो, लेट्स नॉट लाइक रिपीट दैट थिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं एक सीजन को लेकर। तो मुझे बताइए कि ये जो सीजन 2 है उसमें एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, क्या ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए? वर यू वरीड अबाउट इट? आपको लगा कि नहीं ये चीज जो है थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए इस सीजन में? आई थिंक हम लोगों ने ना इस चीज में अपने आप को बांधा नहीं, बिकॉज वी थॉट दैट अगर हम एक्सपेक्टेशंस के डायरेक्शन में चलेंगे तो शायद अपने आप को ही दबा लेंगे। सो वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम सीजन 1 एंड ओवरवेल्म्ड। बट हमने सोचा कि हम सिर्फ कहानी की तरफ से ही सोचते हैं, and thankfully Puneet also operates like that and he's put out a fantastic roster for us to all follow। तो बहुत मजा आया कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम ट्रू टू कैरेक्टर, ट्रू टू स्टोरी रहें, नैरेटिव को फॉलो करें, उसमें जितना भौकाल, जितना मजा, जितना एंजॉयमेंट हम ला सके वो हम लेके आ रहे हैं। कैरेक्टर्स हमारे शो का स्ट्रेंथ है and I think they all became iconic after season 1, so we stayed with that strength of ours and we made them deeper, darker, more explosive। एंड जिस टाइप का रोस्टर हमारे एक्टर्स का है, आई थिंक उनके साथ काम करने में जितना हमें मजा आया, होपफुली द ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय दैट एक्सपीरियंस एंड वॉच द शो। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाना था जय वीरू का और इसके बाद आ गए हमारे गुड्डू बबलू। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर डायरेक्शन टीम में भी एक गुड्डू बबलू है, व्हिच इज अमेजिंग। तो आपके बाद मैं मिहिर देसाई से बात करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू मिहिर जी। हाय हाय। मुझे मैं बात कर रही हूँ कि जब ये जोड़ियां होती हैं, तो जब डायरेक्शन में जोड़ी होती है, तो मुझे बताइए कि क्या होता है इसका स्ट्रेंथ, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस ऑफ हैविंग टू डायरेक्टर्स जब एक ही शो शूट करना हो, और आप दोनों सिंक में कैसे रहते हो यार, खास करके जब एपिसोड बदलता है? देखो, गुरु के साथ तो सीजन 1 में भी काम किया था, सो वी वर ऑलरेडी इन सिंक in that sense, but season 2 we just followed this one thing where in pre-production we would get in a room along with Puneet and Vineet and fight as much as possible. So we would just get on the same page inside the room. So when we are on set, we just look like we are all in sync. And with a cast like this, honestly, life becomes really easy. So it wasn't that much of a struggle. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब थोड़ी सी सांस ले लेती हूँ मैं, बिकॉज आई एम सच अ बिग फैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी सर को इस वक्त स्क्रीन पर लाया जाए। कालीन भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसी हो रोहिणी? दादा मैं तो आपने पूछ लिया तो मैं खिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ मैं एक चीज शेयर करती हूँ, और वो है ये कि दुनिया जब क्रेजी थी मिर्जापुर के पीछे, तब मैं उसमें नहीं बह गई। मैंने ये जो पूरा का पूरा शो है बैक टू बैक बिंज वॉच किया इस लॉकडाउन में, क्योंकि ये दुनिया जो है मेरे इतने करीब अभी आई है। लेकिन मेरी बात छोड़ो, मैंने तो सुना पंकज जी आपने भी शो पहली बार इसी लॉकडाउन में देखा। क्या रिएक्शन था? क्या आपको अब समझ में आया कि लोग इतने पागल क्यों हुए? क्या रिएक्शन था बताइए। हाँ, पहले तो मेरे पास वक्त नहीं था, बहुत एक्सट्रीमली बिजी था, इस वजह से डिले हो गया। तो लॉकडाउन में देखा मैं शो, शुरू किया देखना। तो देखने के बाद वैसे मैं आमतौर पर क्रिटिकल होता हूँ अपने काम को लेके, तो मुझे अब मेरी खुद की कमियां दिखी थोड़ी बहुत, बट मुझे अच्छा नहीं लगता अपने ही शो का खुद ही तारीफ करना अपने मुंह से कि हमने बहुत कमाल किया है। बट अच्छा किया है हमने, मुझे देख के अच्छा लगा कि नहीं यार हमने बढ़िया शो बनाया था। चलिए, इतना तो आपने बोल दिया, लेकिन मुझे बताइए जाने से पहले कि कालीन भैया ये जो किरदार है, इसने पंकज त्रिपाठी को क्या दिया है? इसने मुझे ऐसा दिया है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास भी कालीन भैया के नाम से प्रिंट हो जाएगा।
कालीन भैया, अरे कालीन भैया, तो कई बार तो कालीन बोले कालीन नहीं, मेरा नाम कुछ और है भाई मेरे, पंकज। कहते हैं एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है जब उनके किरदार उनके नामों से बड़े हो जाए। लेकिन पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड वंस अगेन टू हैव यू ऑन स्क्रीन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब बुलाते हैं ऑन द स्क्रीन गुड्डू भैया को। अली फजल, हाय 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 एवरीवन। मतलब मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। मतलब गुड्डू अगर मतलब बल थे तो दिमाग थे बबलू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े सीजन 2 में, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1। यार इससे मैं नहीं रिकवर कर पाई हूँ। अब आप कैसे, हाउ टू रिकवर, मतलब अब क्या होगा बिना उनके? वो स्क्रिप्ट में पहले ही बता दिया जाता है भसड़ और बवाल होने वाला है। तो उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स लाइक पुनीत आल्सो सेड, और गुरु ने बोला, मिहिर ने, इन लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली एक उसको कंस्ट्रक्ट किया है, सारे किरदारों को साथ रखा और स्टोरी आगे बढ़ाई है। क्योंकि पार्ट 2 में बहुत हार्ड हो जाता है उसको टॉप करना, क्योंकि ऑल्सो द ऑडियंसेस हैव केप्ट अस इन द न्यूज़ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. So that's been a really pleasant surprise. यार मैं बहुत मिस कर रही हूँ विक्रांत को और श्रिया को, और उन दोनों को मेरी तरफ से झप्पी। And I'm sure you missed them. Yeah, we missed them on set so many times. इतने locations थे जहाँ मैंने विक्रांत के साथ शूट किया था, तो मैं तो एक दफा I got emo है, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा यार तेरी बहुत याद आ रही है आज। चलिए फ्लैशबैक के सहारे जी लेंगे सीजन 2 में, और क्या लेके आइए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुझसे बात करने के लिए, एंड विल कम बैक इन जस्ट लिटिल बिट। चलिए अब चलते हैं मुन्ना भैया की तरफ। दिव्येंदु, हेलो, हाय रोहिणी। हाय भैया, जो मतलब स्किन ऑफ द कैरेक्टर में उतरने की बात आती है और तुम डरा देते हो यार स्क्रीन पर आकर। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, व्हाट हैव द रिएक्शंस बीन? ये जो सीजन 1 है, इसका हैंगओवर सीजन 2 तक का कैसा रहा है, पहले ये बताइए। आई थिंक हैंगओवर उतरा नहीं बिल्कुल भी, एंड our fans made sure of that. Every morning when you wake up, और सोशल मीडिया के थ्रू आपको हर रोज कोई एक नया मीम, हर रोज कोई एक नई बात मिर्जापुर के बारे में। तो जितना हम चाहे अपनी जितना लोगों ने पसंद किया सक्सेस ऑफ मिर्जापुर को, जितना सटल प्ले करना चाहें, बट लोगों ने वो नहीं करने दिया। They made sure they tell us every day that how much they loved us, and so that meant a lot. So thanks to all of them for that. मुझे बताओ, टू बिकम अ बैड मैन, ताकि आप इस कैरेक्टर के अंदर घुसे, इज देयर अ सर्टेन प्रेप? मैं जानना चाहती हूँ कि सेट पर जाने से पहले कहते हैं ना कुछ लोगों का एक मेथड वगैरह होता है, आपका कोई मेथड है क्या? Oh, definitely रोहिणी, when you have to play a character like मुन्ना, जो कि इतना ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, और बहुत ज्यादा, मतलब जिसे क्रिकेटिंग अगर टर्मिनोलॉजी में बोलूं, बहुत फ्रंट फुट पे खेलने वाला इंसान है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिला था तो उसमें आई थिंक व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर यू ऑलवेज सी कि क्या चीजें हैं जो आप एज एन एक्टर अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो मुन्ना कितना रफ है, कितना विलेनस है एट टाइम्स, वो तो लिखा ही हुआ था। बट मेरा पर्सनली जो कोशिश थी वो ये थी कि ह्यूमेन साइड ऑफ मुन्ना कितनी मैं बाहर लेके आ सकता हूँ। सो दैट वाज द थिंग आई वांटेड टू ब्रिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर। और थैंकफुली शायद वो बाहर आया, जितना लोगों ने रिलेट किया इतना डार्क होते हुए भी उस कैरेक्टर के साथ। तो प्रिपरेशन तो बहुत लगी यार, एंड आई ऑलवेज से कि जब मिर्जापुर शुरू होने वाला होता है, आई एम ऑलवेज वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये शुरू हो रहा है, बट बीच में ऐसा होता है कि यार अब ये खत्म हो जाए इसकी शूट, बिकॉज इट गेट्स सो इंटेंस, इट गेट्स सो डार्क that you just want to just come out and breathe a little fresh for some time. So yeah. I just want to say that thank you so much for playing this character so real, because at no point is he completely bad. You understand him. So iske liye bahut shukriya. Thank you. And a lot of it goes to Puneet Krishna and our directors Guru and Mihir. I mean उन्होंने मुझे day 1 से कभी नहीं बोला कि इसको एक caricature तरीके से ही play करना है. So thanks to you guys as well, guys. Thanks Divyendu. Thank you so much. अब चलते हैं कि पोस्टर पर नजर आई है पहली बार गान उठाते हुए गोलू। नमस्कार नमस्कार। अरे बाप रे यार,
फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आई एम श्योर फाइनली लोगों को जवाब मिल गया है कि कब आ रहा है सीजन 2। लेकिन यार ये मुझे बताओ, गोलू के हाथ में गन, ये अपने आप में एक आइकॉनिक इमेज है, क्योंकि उन्होंने पहले सीजन में कहा था कि मैं कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं लूंगी। तो मुझे ये बताओ कि ये ट्रांजिशन जो था, ये गोलू के कैरेक्टर के लिए कितना अलग था, इम्पोर्टेंट था या मुश्किल था? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी एक नजर तो स्क्रीन पे है और दूसरी नजर मेरे फोन पे है, क्योंकि एक बज चुका है, व्हिच मींस द ट्रेलर इज लाइव नाउ। तो कीप काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। ओके, सो टॉकिंग अबाउट गोलू, आई थिंक गोलू जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने दिमाग में ना एक डैम रखते हैं। तो वो डैम का काम क्या होता है कि चाहे जितना भी प्रेशर हो वो पानी का, या फिर जितनी भी जो क्वांटिटी हो, वो डैम उसको कंटेन करके रखता है। अब क्या होता है कि फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है ना, तो कितने लोग डूबेंगे या शहर तहस नहस हो जाएंगे, वो ना उस डैम के कंट्रोल में होता है और ना पानी के कंट्रोल में होता है। तो आई थिंक गोलू फ्रॉम सीजन 1 to 2 is she never wanted to do that, but she's such a headstrong girl who was made to challenge her own beliefs, because the two people that she loved the most were brutally taken away from her, and मतलब वो चले नहीं गए, उनको छीना गया। So there is a difference. तो वो इतना अंदर एंग्स्ट है, रिवेंज है, फायर है। तो गोलू क्या करती है वो सही गलत उसको भी नहीं पता है, वो करती है क्योंकि उसको उसके हिसाब से ये करना चाहिए। क्या बात है, दीदी तो आ गई है हाथ में गन। I hope this season is going to be as exciting as season 1. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, and all the best to you श्वेता। Thank you so much. चलिए अब क्योंकि हमने दीदियों को बुलाना शुरू कर दिया है, I think the भाभी of भाभीज, the one and only बीना भाभी यानी कि रसिका दुग्गल। हाय रसिका। हेलो। Okay, Rasika, सबसे पहले let me congratulate you for that power-packed character and that crazy, amazing performance in season 1. यार, Thank you. मैं थोड़ा लेट पूछ रही हूँ आपसे, but I still think कि ये जो buzz है season 1 का अब तक कम नहीं हुआ है. Is that correct? बिल्कुल भी नहीं, and I'm very grateful for that and very happy and very amused and amazed by it. So it's something which like people keep asking us कि season 2 जब आप शूट कर रहे थे तो क्या आप भूल गए थे season 1 के कैरेक्टर को? शायद हमें भूलने का मौका ही नहीं मिला, because the fans kept it alive for us. Every day, like Divyendu said, there's a meme or there's something which reminds you of the show, of the character. And I think I just enjoyed playing Beena so much. I always say that, you know, I live vicariously through Beena, because the things that she does, I've never done in my life, but possibly always wanted to maybe. So it's great fun being Beena always, and very different from the other parts I have. So I totally don't want to get over any hangover of season 1. Fantastic. You know, जो fans हैं, जाहिर सी बात हो जानना चाहते कि अब बीना भाभी का क्या होगा, and I don't want to be a spoil sport, तो spoiler दिए बगैर क्या बता सकती हैं? ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन try कीजिए। मिर्जापुर की यही प्रॉब्लम है कि एवरीथिंग इज अ स्पॉइलर, तो कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि सीजन 1 जैसे एंड हुआ है, जो ह्यूमिलिएशन और जो वायलेंस बीना के साथ हुआ है, उससे निकलने में उसको टाइम लगता है। उसकी भी जर्नी है एक, जो पुनीत ने बहुत अच्छे से लिखी है। दैट वाज द एक्साइटमेंट फॉर मी टू रिविजिट हर, बिकॉज दिस इज अनदर साइड ऑफ हर। बट देन शी कम्स बैक इनटू हर ओन एंड फाइंड्स हर बीनानेस and is privy to everything that's happening in the house. तो जानती है कि सबके स्ट्रेंथ्स क्या है, सबकी एक्चुअलीज हील क्या है, वो भी जानती है कि इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. So she plays the men like she wants to, and while making them believe that they're doing their own thing. So like I said, yeah, that's why I say I live vicariously through Beena. दीदी नंबर 1 है ये, दीदी नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, and can't wait to see बीना जी in the season 2 of मिर्जापुर. Thank you so much. चलिए अब हर्षिता के साथ स्क्रीन पर। हाय हर्षिता। हाय यार हर्षिता, इससे पहले मैं सीजन 2 की बात करूं, आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट लास्ट एपिसोड। अली के साथ भी इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाई, बिकॉज दैट लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1 मतलब उसने मेरे को ब्रेक कर दिया है। तो मतलब अगर मैं एक ऐसे मतलब ऑडियंस मेंबर होके इतनी इन्वेस्ट हो सकती हूँ इस कहानी में, और मुझे इतना बुरा लग सकता है कि मैं 2 दिन ऐसे बैठ गई, मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता।
I can only wonder कि डिम्पी के साथ क्या हुआ होगा. Can you take me back to that sort of transition into season 2 जहाँ पर इस कैरेक्टर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और इसके साथ साथ अपने फैमिली को खोया हो? तो फॉर द कैरेक्टर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, जो अगेन वो जैसे ग्रो अप हुई है उसके फादर के प्रिंसिपल्स एंड तो वो पूरे एटमॉस्फेयर को जानते हुए भी वो कभी उसने उसमें बिलीव नहीं किया. दैट आई से दैट. बट जब वो लास्ट एपिसोड होता है और इतनी बड़ी चीज होती है, तो उसके बाद व्हेन यू सी डिम्पी इन सीजन 2, वो अभी भी आई थिंक समवेयर वो पापा की प्रिंसिपल तो है, बट अब उसकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है, परसेप्शन शिफ्ट हो रही है. तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बड़ी हुई है कुछ प्रिंसिपल्स के साथ, अभी भी वो है, लेकिन उसकी रियलिटी भी शिफ्ट हो रही है, परसेप्शन भी शिफ्ट हो रही है. तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट था फॉर डिम्पी. एंड जैसे कि पुनीत जी हमेशा बोलते हैं कि डिम्पी एटलीस्ट तुम्हारी आंखों से हमें कभी कभार लगता है कि कुछ नॉर्मल चल रहा है मिर्जापुर में. तो वो आई थिंक दैट व्हाट डिम्पी ब्रिंग्स. बट हाँ, एज अ कैरेक्टर वो इतना ज्यादा उस टाइम करते वक्त जब हम लोग शूट भी कर रहे थे सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड एंड ऑल दैट, कई बार इनफैक्ट मैं जब डबिंग करने गई थी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की, तो मैं थोड़ी देर डबिंग रूम में बैठ के डबिंग के बाद रो रही थी, बिकॉज इट हिट्स यू सो हार्ड व्हेन यू रियली फील इट. तो एंड व्हेन एवरीबॉडी डिड दैट, लाइक ऑल द एंटायर ऑडियंस फेल्ट, तो अच्छा लगता है फॉर द शो. बट डिम्पी को बहुत बुरा लगा. अच्छा लगता है, सब मर रहे हैं for the show, of course. चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षिता, and I wish you all the best for season 2. Thank you so much. All right, time right now to speak to one of my favorite actors, Shiva ji. Hi. Hi. Hi, yeah. आपके लिए सवाल तो मुझे थोड़ा सा बेहतर ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको go above just the show and just the season, so please allow me. और ये सवाल जो है आपके लिए ये है कि ये जो किरदार था, I think it was so real, क्योंकि she trained the boys to be who they are. At the same time, उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, एंड वो मजे भी ले रही थी, क्योंकि उनको भी एक कहते हैं ना कि हक से एंजॉयमेंट जो था वो कर रही थी, और कभी भी मुझे ये बात जो है खटकी नहीं. आपको लगता है कि ये जो एक पोर्ट्रेयल था, एक बहुत ही रिफ्रेशिंग पोर्ट्रेयल था वर्सेस द यूजुअल मास जिनको हम देखते हैं सिनेमा में? हाँ, मतलब I think for me, you can hear me, right? बिल्कुल. I think for me the hook for Vasudha was that this trait of hers, which is so normally not mother morality code. So this this very individual morality code that she has was always my hook for this character, which is I think what I went with. My lead-in was that. So, of course, like we say, we might not agree with the choices of the character, but मजा उसी में आता है थोड़ा उसको कुरेद के मतलब खुद में भी आप क्वेश्चन करते हो कि क्या है वो चीज जो आपको कनेक्ट कर रही है उस चीज से. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो या फॉर मी हर स्ट्रेंथ एज अ कैरेक्टर व्हिच इज सो 3D इज दैट this peculiar trait that she has. But how I think उसका भी consequence है ना. एक ऐसी चीज, ऐसी trait का हमेशा एक consequence होगा, and as a mother that consequence is so immense. That's I think very wonderfully brought out for me as a in the second season. Yeah. How beautiful. Thank you so much. आपने हमें थोड़ा बताया लेकिन ज्यादा नहीं बताया, but you I admire that. मारेंगे नहीं तो बाद में कैसे काट लेंगे. बहुत शुक्रिया शिवा जी for talking to me, and thank you so much, and wishing you luck for season 2 once again. Thank you so much. Thank you. राजेश जी. हेलो, नमस्ते. आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बुलंद. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मुझे हमेशा से ये सवाल आपको पूछना था, जब से मैंने ये शो देखा, मैंने कहा इतनी करप्ट दुनिया, ये मिर्जापुर जैसा शहर जहां पर कोई सीधा ना हो, मुझे बताइए कि ये जो किरदार है आपका, वो कैसे इतना सीधा रह सका? आपके मन में क्या लॉजिक था इस कैरेक्टर के लिए? मेरा ये मानना है कि मिर्जापुर की दुनिया में ना जीना बहुत आसान नहीं है किसी के लिए भी. बिल्कुल. और अगर वो रमाकांत पंडित हो तो मेरे ख्याल से वो सबसे मुश्किल है जीना. बिल्कुल. सही होके सीधा होके जीना मिर्जापुर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो मैं ये मानता हूं कि रमाकांत पंडित इन अ क्लासिकल वे हीरो ऑफ मिर्जापुर. तो क्या बात.
और एज एन एक्टर मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, छोटा रोल करता हूँ, बड़ा रोल करता हूँ, नेगेटिव करता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो चरित्र मैं कर रहा हूँ वो हीरो है, क्योंकि एवरीबडी इज अ हीरो इन देयर ओन लाइव्स। तो उस हिसाब से मुझे ये और एक चैलेंजिंग होता है हमेशा, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर करना और उसको इंटरेस्टिंग बनाना एक्टर के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, बजाय इसके कि बहुत ड्रामेटिक और नेगेटिव होके एक्टिंग करना। क्या बात है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो हमेशा हीरो जो होता है वो इन सबसे परे होता है, और बिल्कुल वैसे ही आपका किरदार है। सीजन 2 में कमिंग इनटू द सीजन विद अ लॉस, मुझे जानना है कि अब क्या ये राइटियसनेस जो है रमाकांत पंडित की, क्या वो थोड़ी सी कम होगी? देखिए, ये पूरा पंडित परिवार जितनी बड़ी मुश्किलों से गुजरा है पिछले सीजन में, और परिवार के 3 सदस्य खोए एक तरह से, बेटा, बहू और पोता या पोती जो होता या होती, तो जो भी बदलाव आए हैं वो आए हैं, और वो किस तरह के बदलाव आए हैं, तो इंसान पूरी तरह से तो बदलता नहीं, अपने रास्ते पे चलता है, उसमें थोड़ा बहुत ट्वीकिंग होती है, नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये सारे स्पॉयलर्स हैं, तो देखते हैं। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जितना बोले हैं बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। चलिए अब बुलाते हैं स्क्रीन पर को। हेलो। हाय 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 एसपी साहब, कैसे हैं एसपी साहब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं गोवा में हूँ, मजे कर रहा हूँ। ये क्यों बोला आपने? हम सब यहाँ पर मेकअप हेयर लगाए अपने घरों के अंदर कैद है, और आप गोवा में सन ग्लासेस के साथ, बिल्कुल विपरीत है आपके किरदार से। मैं ऐसा ही हूँ, मैं एसपी मॉर्गन नहीं हूँ, मैं वो तो एक्टिंग कर रहा था यार। तो मुझे बताओ, ये जो डायबिटीज से गुजरता है आदमी, लेकिन स्क्रीन पर हमेशा मिठाई या फिर आइसक्रीम खाते हुए नजर आता है, मतलब वर्क है क्या? आपने इसको सीजन 2 में भी आप लेकर आएंगे? प्लीज हमारे लिए आइसक्रीम खा लीजिए सीजन 2 में। देखिए, ये बहुत ही आपने पेचीदा सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस आइसक्रीम का बहुत महत्व है मेरी स्टोरी में, मिर्जापुर में। और अब ये मैं नहीं बताना चाहूंगा कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ सीजन 2 में कि नहीं खा रहा हूँ, और अगर चलिए हिंट देता हूँ, अगर नहीं खा रहा हूँ तो क्यों नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा ही ये सिर्फ फैन समझेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, हम इशारों में बातें कर रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि अब सीजन 2 में, अब जाहिर सी बात है स्टेक्स आर हायर, लेकिन अब आपकी मोटिवेशन क्या है? किसको मतलब पकड़ना है? क्या आप अभी इस वक्त 4 लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर अभी भी कालीन भैया ही आपके टारगेट होंगे? देखिए, मोटिवेशन वही है जो सीजन 1 में थी, और बेसिकली सीजन 1 में मौर्य जी का इंट्रोडक्शन था, ट्रेलर था, तो फिल्म जो है सीजन 2 में पूरी होगी। और मोटिव अभी भी वही है जो उनका पहले था कि क्राइम की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है शहर में, तो वही लगाने में लगे हुए हैं मौर्य जी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, एंड एंजॉय गोवा। हाँ, हम बहुत जेलस हैं, हम सब यहाँ पे। कोई बात नहीं, सब गोवा खुल चुका है, आप सब आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमें भी ऐसे गट्स मिल जाए बहुत जल्द या काम। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए जी, जैसे मैंने कहा कि आए हैं, एंट्री लिए हैं कालीन के साथ, ताकि लगे कि हम तो पहले से ही मेंबर हैं इस परिवार का। ओह माय गॉड, पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिर्जापुर सीजन 2 में विजय वर्मा। Okay, I'm very excited. I'm shouting in my house. मैं चिल्ला रही हूँ। गजल गाया करो, तुम्हारे मामू को भी अच्छा लगता है। गजल भी गाएंगे मामू थोड़ी देर में। यार मुझे बताओ, पहले तो फैन बॉय हो कि नहीं मिर्जापुर के? बिकॉज इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इस शो का फैन होना बहुत जरूरी है। अरे हम तो फैन थे। ये हुआ कि गली बॉय रिलीज हुई और मैं ऑलरेडी मिर्जापुर देख के बैठा था, और गली बॉय रिलीज हुई और ये पुनीत और गुरु ने मिलके मुझे एकदम अंदर ले लिया 1 मिनट में, कह रहा है तुम तो आ जाओ यार। तो गली बॉय को तुरंत, ये पहला मेरा शो था जिसमें मैंने लॉक किया था, और ऑलरेडी फैन था, और मैं वो वाला बंदा था जो पूछता था कि कब आएगा सेकंड सीजन पता हॉस्पिटल के, तो वो बहुत बहुत बढ़िया। ये मुझे बताओ, जो फैंस हैं इस शो के और जो फैंस हैं तुम्हारे, नाउ सडनली दे आर वेरी एक्साइटेड कि यू आर पार्ट ऑफ दिस
यूनिवर्स जिसे कहते हैं कि एक सुपर हीरोज का यूनिवर्स हो, तो आप अभी आ गए हैं एक ऐसे बन के उनके साथ, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स व्हेन ऑडियंस की रिएक्शन क्या है, कितने खुश हैं? यार मतलब दोस्त लोग में, जैसे हैदराबाद में दोस्त लोग हैं, स्कूल के, कॉलेज के, मेरे साथ जो स्टाफ है, सब लोग इस शो को देख चुके हैं। इसका मतलब इसका रीच जो है मेरे ख्याल से सब किसी भी शो से सबसे बड़ा रीच है, नथिंग मैचेस। So, and the fandom, which I have witnessed this as a fan, and now I am part of the show. I get to witness it now, but it's unparalleled. I don't think हमारे यहाँ पर ऐसा कोई शो हुआ है जिसको इस तरह का प्यार, इस तरह का fandom मिला है। तो I am very very delighted and lucky to be a part of this show. ना आपके जुड़ने से I am so excited because as a fan of you, I can't wait to see my favorite universe. बहुत बहुत शुक्रिया विजय, and all the best. Thank you. Thank you. All right, up next, भाई जो सीजन 1 था उनके लास्ट एपिसोड में कहीं ना कहीं हमें पता था कि ये जब आएंगे सीजन 2 में तो इनके साथ तो काफी भौकाल मचने वाला है। मैं बात कर रही हूँ अंजुम शर्मा की। हाय अंजुम। अंजुम, सीजन 1 में जब ये किरदार आपको कहीं ना कहीं नरेट किया गया तो आपको पता था कि 2 एपिसोड है या 2-3 सीन है, लेकिन क्या उस वक्त आपको पता था कि चलो यार रुको, सीजन 2 तो आने दो? सो आई वांट टू नो, ये सीजन 2 का इंतजार क्या आप सबसे ज्यादा कर रहे थे? सॉरी अंजुम, वी कांट हियर यू, मे बी यू आर ऑन म्यूट। Yeah, can you hear me now? Yes. Yeah. बताइए। So the longest anybody who has waited for season 2 has to be me. Exactly. मतलब ये ऐसी बात थी कि आप बढ़िया, मतलब आपके पहले मैदान में एकदम धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं, हाँ जी। आप उनको देख रहे हो और कह रहे हो वाह क्या बात है, और आपको कहा गया कि अब आप आएंगे, अब तुम्हारी आपने बढ़िया पैड वैड पहने और आप रेडी कर रहे हैं, आप आए, आपने पहली बॉल खेली और आपको कह दिया गया कि बस बहुत बढ़िया, अब हम यहीं रुकते हैं, अब हम 2 साल बाद खेलेंगे आपके साथ फिर से। और आपने कहा नहीं लेकिन मैं तो क्या So yeah, ever since Guru had proposed this role to me in season 1, we knew that clearly this role would play out in a much bigger sense in season 2, and it was quite fascinating to see कि such a small role could have such a great intrigue amongst the audience. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ना इरिटेशन होने लगी बाद में कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगा सीजन 2 में, मैंने तो सीजन 1 में भी ज्यादा कुछ नहीं किया। मुझसे प्लीज मत पूछिए। तो बट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द शो एंड द मेकर्स लाइक Amazon Excel। मतलब द शो हैज सच ग्रेविटी कि people just they got emotional, like we have such great anecdotes कि people want to talk about it. अरे यार एक किस्सा तो सुनाओ यार, हम सब खुश हो जाएंगे। कोई ऐसा डीएम हो, कोई ऐसा मैसेज हो जो एक चीज आपके साथ रह गई इस शो के बारे में या सीजन 1 के बारे में? बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बहुत ही बड़ा किस्सा, अच्छा बढ़िया चीज है इसमें। गुरु और पुनीत वगैरह थे वहां पे, हम लखनऊ में जब शूट कर रहे थे तो हम किसी के घर पे थे, तो एक लॉयर थे जो उनके दोस्त थे, तो उनको पता चला कि मिर्जापुर के मेकर्स आए हुए हैं मेरे दोस्त के घर पे, वो बहुत बड़े लॉयर हैं लखनऊ के। वो किसी बहुत जरूरी पार्टी में या कहीं थे, उसे छोड़ के रात को 12 बजे वो सिर्फ आए हैं, बहुत कुछ 1-8 घंटे का ट्रैवल करके सिर्फ मिलने की, मैं मिलना चाहता हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ। क्या बात। और उनके आने के बाद आपको लग रहा था कि यार दिस इज नॉट ओनली दैट देयर आर लॉट ऑफ शोज, लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हिच वी सी एंड वी अप्रिशिएट। दिस content and show has gone beyond that people have emotionally got connected with the iconic characters, and they have really got connected with the show. बिल्कुल It was overwhelming. I can't wait to see कि शरद इस सीजन में क्या करते हैं। Honestly, that excitement as a fan of the show is right now with us, और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये बहुत ही बड़ा सीजन हो। बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. Okay, चलिए अब You guys are we are trending. We're trending. Trending at number 1. जाहिर सी बात, दीदी देखो तुम्हारे कदम पड़े और ट्रेंड करने लगे हम। मतलब दीदी क्या बोले? I am so excited that you're part of the Mirzapur family. लेकिन मुझे बताओ, I'm going to ask you the same question that I asked Vijay. कि ये शो
how exciting is it for an actor to be part of something so iconic? Tell me that moment, that call जब तुम्हें पता चला कि मैं हूँ season 2 में. यार एक्चुअली यूजुअली ना बहुत ऑडिशंस में पकाते हैं मुझे, 5-5 6-6 राउंड में बुलाते हैं, बट पहली बार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी कि एक ऑडिशन में इन्होंने कहा भाई आप आइए मिलिए हमसे, एंड दे सेड शो आपका है. सो आई for me it was huge. I said okay, this is great, I don't have to go through the drill, and these are guys who trust me. So I think yeah, I think I've been fairly lucky. Look at the screen, this is a beautiful set to be a part of. Yes, but with great power comes great responsibility. तो दीदी अलग लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पहले जो खिलाड़ियां हैं, जो खिलाड़ीज जी यहाँ IPL चल रहा है, वहाँ पे गोलू जी डजंट गिव अ डैम, देवेंदु जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ. एंड मेरा किरदार एक्चुअली पहली बार मैंने कुछ सीरियस अटेम्प्ट किया है. you'll see a serious side of me and you'll see a deeper side of me. So away from the fun and the bubbliness and the girl next door. So I'm very quite good, because stop making women bubbly and fun. We are also bubbly fun में कोई problem नहीं है, but हमेशा नहीं ना, मतलब थोड़ा और भी. मेरे को तो गन चाहिए भाई, खत्म करो, दीदी के हाथ में गन दो, मुझे चाहिए गन. जी गन लिखा है क्या आपने? देखते हैं, पता चलेगा. But congratulations once again and all the best. I'm sure you're going to be a value addition to. I'm just waiting for memes. I'm just waiting कि बस मेरे memes कब बनेंगे. देखो दुनिया लोग डरते हैं इससे. यहाँ पे मिर्जापुर की कास्ट, दुनिया में एक ही कास्ट है भाई, बनाओ हम पर मीम, हमें चाहिए मीम. चलिए, on that note, thank you Isha and all the best. Thank you love, thank you. चलिए अब बुलाते हैं स्क्रीन पर प्रियांशु को. हाय प्रियांशु. हाय, नमस्ते रोहिणी, हाउ आर यू? मुझे तो ना कहीं लगा कि सीजन 1 में तो तुम्हें होना ही चाहिए था. तुम्हें भी ऐसे लगा क्या? मुझे लगा, मैं वहां था. अब वो सीजन 2 में आपको पता चलेगा कि मैं दिख नहीं रहा था. अच्छा. इस तरीके का शैतान मिस्टीरियस कैरेक्टर अब सीजन 2 में आने वाला है. अच्छा. जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं था सीजन 1 में. अब बस वो सामने आ रहा है और बहुत धीरे अब आ रहा है. मेरे को जानना है कि there is this new sort of like शाहरुख खान ने किया था 90s में कि मतलब मैं बनूंगा विलन, और हमने देखा आपको एक्सट्रैक्शन में से विलन का रोल करते हुए, and here you are. I'm assuming, मुझे पता नहीं कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, is it a character that's the good guys or the bad guys? पहले तो ये बताओ. देखो क्या हुआ कि एक्सट्रैक्शन में जब मैंने विलन प्ले किया तो उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे वायलेंट पिक्चरें मत करो, बहुत ज्यादा एक्शन है. मेरी मम्मी को वायलेंट पसंद नहीं है. मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मिर्जापुर में, वहां तो सब कट्टा चलाते हैं, ठीक है, तो वहां बड़े बड़े किरदार है जो कट्टा चलाते हैं, इनके फील्ड में जाके, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कट्टा नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ जबान चलाऊंगा. तो मेरा जो कैरेक्टर है वो ना मैं कहूँ कि सही है गलत है, वो सिर्फ रॉबिन को पता है. मेरा कैरेक्टर नाम रॉबिन है और वो क्या कर रहा है सिर्फ उसी को पता है. और बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, वो शैतान है मैं कहूंगा, और वो सबके पास आता है, कुछ ना कुछ करके चला जाता है और सबको लगता है कि अरे ये तो कितना अच्छा लड़का है, लेकिन उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. Yeah, I can't wait for Robin. Seriously, one of the very interesting characters I've played. I think the time I read it also, and जब मैं पुनीत जी और गुरु से मिला, मैंने कहा ये खेलने में बहुत मजा आएगा. ये तो मतलब ये ऐसा कैरेक्टर है कि जिसमें ज्यादा आप मैं बोलना चाहता हूँ बहुत, लेकिन अब मैं सीजन 2 देखना पड़ेगा उसके लिए, तब लोगों को पता चलेगा कि क्यों है. और सीजन 2 देखने के बाद रोहिणी तुम जरूर, मैं एक चीज पक्का प्रॉमिस करता हूँ, पक्का मेरी मम्मी से मिलना चाहोगी. तो जब सीजन 2 देख लोगी ना तो आना और मम्मी से मिलवाएंगे जरूर. चलिए इसका इंतजार रहेगा. प्रियांशु, वेलकम टू द मिर्जापुर फैमिली once again and all the best for season 2. Thank you so much everybody जिन्होंने मुझसे आकर बातें की हैं. I can't tell you, as a fan of the show, I'm so excited. लेकिन आप और मैं डेट जो है अपने कैलेंडर पर नोट करेंगे. 23rd of October 2020 exclusively Amazon Prime Video पर हम जानेंगे कि अब मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेंगे amongst the multiple layers of vengeance, conspiracies, romance and drama. जितने भी हमारे दोस्त हैं जो प्रेस से हैं, तो मैं उनसे आज दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आपका प्रेस kit जो है प्लीज कलेक्ट कर लीजिए from the link provided to you. This is me Rohini signing off, but I just want to wish everybody on this press conference today all the best. Can't wait for thank you Rohini, thank you so much. Thank you. Oh my god. Bye Rohini.